Okay, Assalamu alaikum, dear students. I am Dr. Asma. Uh, I'm assistant professor in physiology department. I'll be taking or accompanying Dr. Hasib in your classes for the topic of respiration. Now, today we are going to discuss the respiratory insufficiency or oxygen therapy. Now, respiratory insufficiency, by definition, is any condition which leads to impaired pulmonary function, leading to decreased oxygen supply and the reduced gaseous diffusion or impaired functioning of the respiratory system. So, any condition leading to the incompetent or decreased functioning capacity of the respiratory system is included under the heading of respiratory insufficiency. There are certain methods which we use, and on the basis of the results of these methods and maneuvers, we definitely label the different diseases, different conditions under the heading of respiratory insufficiency. यानी हम different methods, अगर आप कहीं पे uncomfortable हो रहे हो, just give me a mark on the chat and I'll see it. ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसमें क्वेश्चन चैट में डाल सकते हैं. I'll discuss with you. तो देयर आर सर्टेन मेथड्स जिसमें हम रेस्पिरेटरी एब्नॉर्मलिटीज़ को हम जिनसे हम स्टडी करते हैं. ठीक है, इसमें सबसे पहले तो है हम करते हैं स्पायरोमेट्री, जिसमें हम डिफरेंट लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ को देखते हैं, डेड स्पेस को देखते हैं डिफरेंट मेथड से, और ये फिजियोलॉजिकल शंट्स को देखते हैं. फिर होता है स्टडी ऑफ द ब्लड गैसेज एंड द ब्लड पीएच. उसके लिए हम डिफरेंट गैजेट्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट अपरेटसेस यूज़ करते हैं to determine the diffusion of the gases or pH of the blood क्या है, because pH of the blood is very important as you have discussed in the regulation of the respiration. and Dr. Seep ने आपका लेक्चर लिया कि pH of the blood is very important, कि जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है that directly affects the respiratory centers. So the level of hydrogen ion is and its determination is very important. It is helpful in determining appropriate therapy in acute respiratory distresses and acute abnormalities of acid-base balance. ठीक है, यानी जहाँ भी कोई respiratory insufficiencies आती हैं, आप देखिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, लीडिंग टू increased hydrogen concentration. So depending upon the level of the hydrogen concentration, we can determine the type of the disease and the appropriate method of treatment which we can implement to treat the disease. ठीक है, a blood pH is measured using glass pH electrode by recording it in the on a voltmeter. ठीक है, कि हम उसमें एक लगा देते हैं, गैजेट लगा दें, इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं ऑन द चेस्ट या ECF में, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गैजेट इट इज़. तो हम उससे फिर इलेक्ट्रोड को फिर हम उसको अटैच कर देते हैं विद द वोल्टमीटर, और जितनी उससे डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज आता है उससे हम डिटरमिन कर लेते हैं कि pH ऑफ द ECF क्या है. ठीक है, then the partial pressure of carbon dioxide is measured. It is also measured by this pH electrode method. जो ग्लास ट्यूब हम इसके लिए यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड्स, वही हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिटरमिन करने के लिए भी यूज़ करते हैं. ठीक है, और इससे जो आती है रीडिंग्स आती हैं उसको फिर हेज़ल-हेज़रबाइज इक्वेशन में हम यूज़ करते हैं, जिसकी अब इक्वेशन इसमें हम आपकी फिर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन डाल के और बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन डाल के तो फिर हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं. बाय द pH इज इक्वल टू 6.1 प्लस लॉग इंटू बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. अब pH से हम देख लेते हैं, pH से हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ जाती है हमारे पास और बाइकार्बोनेट आ जाता है. सो बाय पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम इससे डिटरमिन कर लेते हैं. There is another method of determining the oxygen partial pressure of oxygen. उस मेथड को हम कहते हैं पोलैरोग्राफी, जिसमें कि पोलराइजेशन ऑफ द लाइट उससे हम डिटरमिन करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. इलेक्ट्रिक करंट इज मेड टू फ्लो बिटवीन नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स इन द सॉल्यूशन. जिस सॉल्यूशन में हमने मेजर करना होता है उसके साथ हम अटैच कर देते हैं उधर से नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और फिर उसमें से करंट हम पास करते हैं. इतना वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रोड इज, अगर वहाँ पे
जो हमने करंट पास किया है उसका और जो वोल्टेज आ रही है उस पर वोल्ट मीटर पे उसका डिफरेंस जो है -0.6 वोल्ट से ज़्यादा हो तो फिर ऑक्सीजन जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है ऑन द इलेक्ट्रोड। तो हैंस वी कैन डिटरमिन फ्रॉम देयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम एक्सपिरेटरी फ्लो, ये भी हम डिपेंड करता है कि हम यूजुअली स्पायरोमीट्री से हम देख लेते हैं, लेकिन अगर ना हो तो हीलियम डाइल्यूशन मेथड से भी देखा जा सकता है। When a person exhales with the maximum effort and expires, airflow reaches its maximum. One can, uh, beyond which the person cannot exhale more. होता ये है कि हम पेशेंट को कहते हैं कि आप जो है नॉर्मल ब्रीदिंग करते करते और फिर आप अपनी एक्सपायर करो और फिर मैक्सिमम एफर्ट से एक्सपायर करो और फिर जितनी ज़्यादा एक्सपायरेशन होती है उतना ही जो ग्राफ बनता है और उससे हम बट डिटर्मिनिंग द वैल्यूज ऑन द ग्राफ हम डिटर्मिन कर लेते हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो ऑफ दैट पर्सन। ठीक है। सो दीज आर द सर्टेन मेथड्स। ये देखिए अब इसमें मैक्सिमम एक्सपिरेटरी फ्लो किस तरह लेता है। ऊपर जो उसने डायग्राम दिखाई है कि किस तरह ये स्टार्ट होता है, हाउ डज इट एंड। कि अब जब शुरू करता है वो एक्सपायर करना तो वो एक मैक्सिमम एफर्ट से करना शुरू करता है, बट जैसे जैसे वो एक्सपायर होता जाता है एंड में वॉल्यूम कम रह जाता है। तो आप देखिए कि वो आगे उसके बीच में एक लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आ जाता है जहाँ से मिनिमम एक्सपिरेशन होती है, जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द गैसेस विद इन इट विद इन द सर्कुलेशन कम हो जाता है। ठीक है। तो एक्सपिरेटरी एफर्ट जो है ना वो एक लिमिटेड होती है और बियॉन्ड विच द पर्सन, जितना पर्सन मैक्सिमली एक्सपायर कर सकता है वहाँ तक हम उसको कहते हैं कि वो एक्सपायर करे। ठीक है। और फिर हम उसको प्लॉट कर लेते हैं एक ग्राफ के ऊपर, जैसे यू कैन सी ऑन दिस लोअर ग्राफ के, ये जो है ये मैक्सिमम एक्सपिरेटरी फ्लो का ग्राफ है। ठीक है। ये दिस इज द टोटल लंग कैपेसिटी। आपने लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज का चैप्टर पढ़ा होगा, तो टोटल लंग कैपेसिटी जो है ना ये दिस गोज टुवर्ड्स इट। ठीक है। इसमें क्या है कि जब यहाँ मैक्सिमम तक जाता है और उसके बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि आप एक्सपायर करें, तो मैक्सिमम एक्सपिरेटरी फ्लो से वो जो है एक्सपिरेशन से लेवल जो है वो कम होता जाता है एंड रीचेस द लोएस्ट मोर लेवल, जहाँ के रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाती है बियॉन्ड विच द पर्सन कैन नॉट एक्सपायर एनी मोर। ठीक है। नॉर्मली मैक्सिमम एक्सपिरेटरी एफर्ट का ग्राफ ये बनता है कि पहले हम जो मैक्सिमम अमाउंट होती है वो निकलती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब स्लो डाउन होता जाता है तो उसकी जो एक्सपिरेटरी फ्लो रेट है जो कि आपके वाई एक्सिस पर नजर आ रहा है लीटर्स पर मिनट, वो भी पहले 400 से कम होता होता 100 एंड देन इट कम्स टू ऑलमोस्ट लेवल ऑफ जीरो। जीरो पे आता है, जीरो इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, तो हम ले लेते हैं। ठीक है। beyond which the person cannot expire. अब ये जो है दो डिफरेंट कंडीशन है, या तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है या कंस्ट्रिक्टेड लंग डिजीजेज है। अब उसमें नॉर्मल जो एक्सपिरेटरी फ्लो ग्राफ जो होता है ना उसमें क्या चेंजेस आती हैं। अब जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें आप देखिए कि पहले ही जो इनहेलेशन पे है वो मैक्सिमम जो वाइटल कैपेसिटी है वो भी, टोटल लंग कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हुई हुई है। दिस इज जस्ट बिलो 200 लीटर्स पर मिनट। ठीक है। वहाँ से जब वो एक्सपायर करता है, चूंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो डिक्रीज होके इट डीपन्स डाउन एंड कम्स टू द लेवल ऑफ जीरो। ठीक है। इट टेक्स अ बिट टाइम कि वो एफर्ट करता है और फिर ताकि it can overcome the obstruction on expiration. So it takes a little more time कि it reaches the residual volume. लेकिन अगर कंस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज है, कंस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि जो बंदा इंस्पायर भी उतना ही कर रहा है, उसको जितनी डिफिकल्टी इंस्पिरेशन पे है उतनी ही एक्सपिरेशन पे भी है। सो उसमें क्या होता है कि आप देखिए कि ये जो है इंस्पिरेशन और ये एक्सपिरेशन। ठीक है। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन वैसे ही नॉर्मल चलते जाते हैं, बट होता क्या है कि इसका जो लेवल है जो कि नॉर्मल लेवल से इसकी कैपेसिटी जो है ना दैट इज रिड्यूस्ड कमिंग टू द लेवल ऑफ 200। ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज करती है, लेकिन इसमें जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो है ना उसके लेवल जो है ना वो दे कॉरेस्पॉन्ड्स विद द नॉर्मल एक्सपिरेटरी फ्लो वॉल्यूम चार्ट या फ्लो वॉल्यूम कर्व जो है इसका। ठीक है। लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्टिव होता है उसमें इंस्पिरेशन तो बिल्कुल ठीक होती है, बट एक्सपिरेशन जो है ना दैट इज अ बिट प्रोलॉन्ग ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवेज ऑन एक्सपिरेशन।
फिर हम इसमें देखते हैं मैक्सिमम और जो टेस्ट हम करते हैं, द मेजरमेंट ऑफ फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वाइटल कैपेसिटी एंड फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम ऑन स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर का भी आप लोगों ने पता नहीं बिफोर हॉलीडेज ये आप लोग कर सके नहीं कर सके, एनीवे आप लोगों का ये होता है, प्रैक्टिकल में भी आपको करवाया जाता है स्पायरोमेट्री। तो उसमें हम पोस्ट वाइटल कैपेसिटी भी मेजर करते हैं और एक्सपिरेटरी वॉल्यूम भी मेजर करते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि सारे ऑपरेटर सेट करके आफ्टर गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, हम पेशेंट को कहते हैं कि आप इंस्पायर करो, मैक्सिमली इंस्पायर करो जितना आप कर सकते हो, टू योर द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ योर लंग्स। ठीक है, जितनी आपकी लंग्स की कैपेसिटी है उतनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक आप इंस्पायर करें, और उसके बाद जो है ना उतनी ही मैक्सिमम कैपेसिटी तक एक्सपायर करें। ठीक है, यानी फुल इंस्पिरेशन टू द मैक्सिमम लेवल एंड फुल एक्सपिरेशन टू द मैक्सिमम पॉसिबल लेवल। वहाँ तक जो है हम उसको एक्सपायर कराते हैं, और फिर उसका जो ग्राफ बनता है, दैट इज फ्रॉम देयर वी डिटरमिन द टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, इन नॉर्मल पर्सन फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो होती है इन द फर्स्ट सेकंड, जिसको FEV1 कहते हैं, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द FEV1 इन द पर्सन विद अ पार्शियल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्वियसली जो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन द फर्स्ट सेकंड है वो एक नॉर्मल पर्सन की फ़र्क होगी, और एक बंदा जो कि डिजीज है उसकी एक्सपिरेटरी एफर्ट जो कि कम होगी, उसकी फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड FEV1 जो है वो भी उसका लेवल भी कम होगा। ठीक है, सो ये जो है FEV1 FEV1 होता है फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1/2 और FVC फोर्स वाइटल कैपेसिटी। इनकी रेशियो होती है जो कि डिटरमिन करती है कि वेदर द पर्सन इज नॉर्मल और द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक, और जो है उसमें फिर ये डिटरमिन करते हैं कि आइदर दैट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस। ठीक है, जितने भी इम्पेयरमेंट्स और द डिजीजेस ऑफ लंग्स हैं उनको हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है इंस्पिरेटरी लंग, मेनली रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस। ठीक है, अब FEV1 FVC रेशो जो है नॉर्मल पर्सन में 80% तक आती है। ठीक है, और जो FEV1 FVC रेशो डिजीज पर्सन में, जनरली कोई भी डिजीज है उसमें 47% होती है, मे बी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस में। लेकिन एस्थमा में, एस्थमा इज मेनली एंड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर होता है वो, और उसमें जो है FEV1 FVC रेशो जो है वो 20% तक, परसेंटेज जो है ना 20% तक डिप डाउन कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन मेथड्स कि जिनसे हम डिटरमिन करते हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ द डिफरेंट आयंस एंड द गैसेस विद इन द सर्कुलेटिंग ब्लड क्या है, और उनके बेसिस पे हम डिटरमिन करते हैं कि वेदर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और द पर्सन इज नॉर्मल। इसी तरह ही हम पोस्ट जो मेनली एक्सपिरेटरी वॉल्यूम्स एंड द कैपेसिटीज को देखते हैं स्पायरोमीटर, और उससे भी हम डिटरमिन कर सकते हैं कि फ्रॉम विच डिसऑर्डर द पेशेंट इज सफरिंग। ये देखिए, ये अब ग्राफिकल इसका एक रिप्रेजेंटेशन है कि FEV1 और FVC रेशियो का, के एक ऊपर जो है ए में वो नॉर्मल दिखाया है, उसमें आप देखिए कि FEV1 FVC रेशियो जो है दैट इज 80%, और जो नीचे है डिजीज है इसमें एक तो आप देखिए लंग वॉल्यूम जो है चेंजेस, वो भी एक उसमें इट इज़ लोअर देन द नॉर्मल। ठीक है, और मैक्सिमम इंस्पिरेशन जो है नॉर्मल में वो 4 लीटर्स तक गई हुई है, जबकि डिजीज पर्सन है उसमें ये जस्ट अबव 3 लीटर्स पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ हैं लंग्स की, दे आर ऑल्सो डिस्टर्ब। तो FEV1 FVC रेशियो जो है ना वो हमें हेल्प करती है इन डिटर्मिनिंग द टाइप ऑफ डिसऑर्डर। नॉर्मल में अगर 80% आ जाती है देन इट इज़ नॉर्मल, और अगर ये डिक्रीज कर जाती है टू अ सर्टेन लेवल तो हम उसको डिटर्मिन करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या है। ठीक है, और नीचे ग्राफ में आप देखिए कि उसमें जो FEV1 FVC रेशियो है तो दैट इज 40%। Now, there I have already told you कि टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस और या इनसफिशिएंसी जो होती है ना उनको दो मेन डिफरेंट ग्रुप्स में हम क्लासिफाई करते हैं। एक तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। रिस्ट्रिक्टिव से आपको ये पता चल जाता है, एज द नेम इंडिकेट्स कि रिस्ट्रिक्टिव होती है कि रिस्ट्रिक्शन
टू द रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन जो है इसमें इंस्पिरेशन पे भी रिस्ट्रिक्शन है और एक्सपिरेशन पे भी रिस्ट्रिक्शन है, यानी उसके दोनों ही एफर्ट्स जो है ना दे आर रिस्ट्रिक्टेड, both inspiration and expiration both of them are restricted, while obstructive में जो है inspiration is normal but expiration जो है ना that is restrictive, यानी उसमें obstruction आ जाती है, expiration is difficult, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस में क्या क्या आ जाता है, ट्यूबरकुलोसिस आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में डिफरेंट एरिया ऑफ फाइब्रोसिस बन जाते हैं, ठीक है अल्टीमेटली। और फाइब्रोस जो भी एरिया होगा वो नॉन फंक्शनिंग होगा, अगर नॉन फंक्शनिंग होगा तो इंस्पिरेशन पे भी वो उतना ही नॉन फंक्शनिंग है और एक्सपिरेशन भी उतना ही नॉन फंक्शनिंग है, यानी जितने पोर्शन ऑफ लंग्स ने काम नहीं करना वो इंस्पिरेशन पर भी नहीं कर रहे और एक्सपिरेशन पर भी नहीं कर रहे, तो ट्यूबरकुलोसिस भी होता है। सिलिकोसिस जो होता है, सिलिकोसिस में ये होता है कि ये यूजुअली नहीं, ये फर्स्ट वन से स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस जो होता है कि ये लेटरलाइजेशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम होती है, ये जो है ना आपकी वर्टिब्रल कॉलम वैसे तो थोड़ी सी बैकवर्ड साइड पे जो होता है उसका एक थोड़ा सा कर्व आता है, लेकिन जो स्कोलियोसिस होता है उसमें ये कर्व जो बजाय पीछे डोर्सल साइड पे होने के तो थोड़ा सा लेटरल साइड पर होता है, इसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं। ये एक एनाटॉमिकल डिसऑर्डर है जो कि बोन्स का डिसऑर्डर है, जो मेनली आपकी वर्टिब्रल कॉलम का, ठीक है। काइफोसिस जो है ना जिसको हंचबैक भी कहते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा बैकवर्ड जो है ना वो बेंड है जो नॉर्मल होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से जो डिफॉर्मिटी ऑफ द चेस्ट वॉल हो जाती है, डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट वॉल की वजह से चेस्ट वॉल की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, सेम इज द केस विद स्कोलियोसिस, कि चेस्ट वॉल की मूवमेंट जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों ही इम्पेयर हो जाती है। सिलिकोसिस, सिलिकोसिस जो होती है ना वो एक कंडीशन होती है जो कि यूजुअली माइंस में होती है, या जहाँ पे ये जो है ना ग्लास मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है इसमें सिलिकॉन यूज़ होता है, तो वहाँ पर ये होता है कि इनहेलेशन से पार्टिकल जो है ना दे गेट डिपॉजिटेड विद इन द लंग्स, और वहाँ पर जो है ना सिलिकॉन डिपॉजिट की वजह से वहाँ पर फाइब्रोज हो जाते हैं एरियाज एज इन एनी डिजीज कंडीशन, ठीक है। फिर होता है फाइब्रोटिक प्लूरिसी, फाइब्रोटिक प्लूरिसी की जो जो प्लूरल कैविटी है, दो जो आउटर लेयर्स ऑफ द लंग्स हैं उनके दोनों के दरमियान में जो प्लूरल कैविटी है वहाँ पे किसी भी कंडीशन की वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है या कोई इन्फेक्शन हुआ है या एयर एंड ट्रैप्ड है या कुछ है, जिसकी रिजल्ट में यूजुअली मोस्टली ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, और उसमें क्या है कि जो प्लूरल कैविटी के अंदर फाइब्रोज्ड एरियाज बन जाते हैं, तो फिर हम उसको कहते हैं फाइब्रोटिक प्लूरिसी। प्लूरिसी इज़ वेरी पेनफुल कंडीशन, किसी जिसमें जब इंसान इनहेल करता है या एक्सहेल करता है तो जो लेयर्स हैं लंग्स की वो जो आउटर लेयर्स हैं कवरिंग वो एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई वो ड्यू टू दैट जो रिस्ट्रिक्शन इन द मूवमेंट, जो पहले स्लाइडिंग होती है आमतौर पे, तो जो इसमें जो भी हर्डल्स आती हैं तो उसकी वजह से वो बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। प्लूरिसी इज़ वेरी पेनफुल कंडीशन ऑन इनहेलेशन एंड एक्सेल ऑन एक्सपिरेशन, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन कंडीशंस जो कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज में आप देखिए, ट्यूबरकुलोसिस होती है, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, सिलिकोसिस, फाइब्रोटिक प्लूरिसी। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज जो इसमें आ जाती हैं वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉमन डिजीजेज होती हैं जैसे और COPDs हम कहते हैं इनको। COPD जो है ना इट इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस का ये एब्रीवेशन है, और इसमें डिफरेंट डिजीजेस आ जाती हैं जिसमें एम्फाइसीमा है, एस्थमा है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, एटिलेक्टिसिस है, ब्रोंकिएक्टिसिस है एंड निमोनिया है, ठीक है। दीज आर सर्टेन कंडीशंस जो कि कम अंडर, ये सारी वो कंडीशन है जिसमें कि इंस्पिरेशन तो पेशेंट की ठीक होती है बट एक्सपिरेशन इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, और जिसकी वजह से इनको हम ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस के हेडिंग में इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द क्रॉनिक पल्मोनरी एम्फाइसीमा, ठीक है। अब एम्फाइसीमा जो होता है ना आप पाकिस्तान में बहुत कॉमन है बिकॉज यहाँ पे स्मोकर्स बहुत है, और ये इट इज़ यूजुअली अ डिजीज ऑफ चेन स्मोकर्स। तो चेन स्मोकर्स में होता है कि चूँकि वो ये उन लोगों में होता है, इससे ऑब्स्ट्रक्शन, हाँ कैसे काम
शुरू से आ रहा है, शुरू से वो तो स्लाइड के आगे नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ आ रहा है ना, मुझे फिर पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, है कवर कर रहा है ना स्लाइड को ना। मिनिमाइज कर दे, साइड पे जा इधर मिनिमाइज कर अच्छा जी, emphysema is the meaning of the word emphysema is excess air in the lungs. ठीक है। Now this is a disease, very complex, obstructive, destructive and destructive process of the lung caused by chronic smoking for many years. जो लोग हमारे यहाँ यूजुअली होता है कि बचपन से स्मोकिंग स्टार्ट की होती है उन्होंने, ठीक है, तो this leads to the very destructive and the obstructive disorder obviously and a chronic one. तो उसको हम कह देते हैं एम्फीसीमा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक स्मोकिंग। मेजर पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस इसमें क्या आती हैं कि क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है कॉज बाय स्मोकिंग। ज़ाहिर है स्मोक करता है तो वो इरिटेंट जो होता है ना वो लंग्स के अंदर जाते हैं, दे कॉज सेवियर इरिटेशन लीडिंग टू द इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लेमेशन। ठीक है, क्या मेनली जो है ना स्मोकिंग से होता है, मे बी ड्यू टू सम अदर इरिटेंट जो है ना वो भी ब्रोंकाई में चले जाएं, ठीक है, और ब्रोंक्यूल्स। उसमें क्या होता है कि जब ये अंदर एंटर होते हैं तो दे कॉज द पैरालिसिस ऑफ सीलिया। जो हमारा पूरा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, सीलिया, जो कि मूव करते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स को अवे फ्रॉम द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कि जो भी कोई इरिटेंट आ जाता है या एक्सेस म्यूकस आ जाता है, जस्ट टू क्लियर द एयरवे पैसेजेस। ठीक है, तो ये सीलिया जो है इनका मेन काम ये होता है कि ये क्लियर करते हैं एयरवे पैसेजेस को। अब स्मोकिंग में होता है चूंकि इरिटेंट्स आ जाते हैं डिफरेंट, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद कर लीजिए इस तरह, ठीक है। एम्फोसीमा मीन्स द एक्सेस लंग्स इन द एयर ड्यू टू द क्रॉनिक स्मोकिंग। क्रॉनिक स्मोकिंग से होता क्या है कि इरिटेंट्स दे एंटर इन द एयरवे पैसेजेस, जहाँ पे जाके वो दे कॉज इन्फेक्शन लीडिंग टू द पैरालिसिस ऑफ द सीलिया। सीलिया जो है ना जब पैरालाइज होते हैं तो जितने भी इरिटेंट मटेरियल होता है इन द विद इन द एयरवे पैसेजेस वो दैट स्टेज देयर, ठीक है, वो वहीं पर ही रहता है और वहाँ से इट डजंट बीइंग वाइप्ड आउट बाय द सीलिया। तो जब ये वहाँ पर ऊपर एक्यूमुलेट होता है, जस्ट टू रिमूव इट, तो जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं विद इन द एयरवे पैसेजेस वो दे उनकी सिक्रीशंस जो होती हैं ना दे गेट इंक्रीज इसलिए हो जाती हैं ताकि वो जितना एक्सेसिव इरिटेंट मटेरियल है उसको वाइप आउट कर दिया जाए। ठीक है, सो एक तो एक्सेसिव म्यूकस हो जाती है अंदर, और दूसरी ये इसमें इनहिबिशन कर देते हैं एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। आपने जैसे कि पढ़ा है उसमें ब्लड में कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना वो एल्वियोला में एज इन द अदर जो दूसरे जैसे कुफर सेल्स वगैरह पड़े होते हैं लिवर में, इसी तरह एल्वियोला में एल्वियोलर मैक्रोफेजेस पड़े होते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इन्होंने क्या करना था, ये जाके उनको भी इनहिबिट कर देते हैं ये इरिटेंट पार्टिकल्स। ठीक है, सो दूसरे इसमें चूँकि एक्सेसिव म्यूकस हो जाती है ड्यू टू द इरिटेंट मटेरियल, तो ये स्मॉलर एयरवेज जो होते हैं ना उनमें ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है इन द स्मॉलर एयरवेज। दूसरे, अब जब स्मॉलर एयरवे जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, बाहर जो है ना जितनी इनहेल तो कर रहा है वो बट एक्सहेल नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, तो होता क्या है, देयर इज एंट्रैपमेंट ऑफ एयर इन द एल्वुलाई। एल्वुलाई के अंदर जो है ना एयर ट्रैप हो जाती है और एल्वुलाई की वॉल जो होती है ना वो स्ट्रेच हो जाती है। The overstretching, this entrapment of the air in the alveoli leads to overstretching with the infection. Infection साथ में हो जाता है और this leads to the destruction of 50 to 80% of alveolar walls. ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना इफेक्ट है ऑफ द एम्फोसीमा कि इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वुलर वॉल्स होती है। ठीक है,
ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से हो जाए, इन्फेक्शन की वजह से हो जाए, तो जो नॉर्मल एनाटमी होती है एल्वेलाई की, वो दैट डजंट सस्टेन देयर, वो नहीं रहती है, तो उससे एक तो एल्वेलाई का साइज बड़ा हो जाता है, लार्जर बुला बन जाते हैं, ठीक है, तो बुल्लस लाइक अपीयरेंस हो जाती है उसकी, उसमें 50 to 80% ऑफ एल्वेलर वॉल्स होती है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है इसमें। नेक्स्ट इज द कि अब होता क्या है, एक तो ब्रोंकुलर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, ब्रोंकुलर ऑब्स्ट्रक्शन से जो है बाहर एयर नहीं जा रही है, एयर वे रेजिस्टेंस है टू द एक्सपायरेशन, और इससे क्या होता है कि अगर एक्सपायर नहीं कर पा रहा तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग भी ज़्यादा हो जाएगी, पेशेंट ज़्यादा एफर्ट करता है, देयर इज़ मच मोर लोड ऑन द एक्सपेरेटरी एफर्ट रादर देन इंस्पिरेशन, ठीक है। देयर इज मार्क लॉस ऑफ एल्वेलर वॉल्स ग्रेटली डिक्रीजेस डिफ्यूजन कैपेसिटी, जाहिर है जब मेन जो डिफ्यूजन ऑफ द डिफरेंट गैसेस है दैट इज थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स में फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द एल्वेलर वॉल्स, जब एल्वेलर वॉल्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो जो डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द डिफरेंट गैसेस थ्रू द लंग्स है वो भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब जब डिफ्यूजन कैपेसिटी कम होगी इसका मतलब है कि ऑक्सीजन भी कम जा रही है, ऑक्सीजन कम जा रही है बॉडी में, तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इज इंक्रीज विद इन द सर्कुलेशन, और उससे रेस्पिरेटरी सेंटर मजीद जो है ना वो स्टिमुलेट हो जाता है और रेस्पिरेटरी एफर्ट और बढ़ जाती है, और रेस्पिरेटरी एफर्ट बढ़ती है तो वर्कलोड ऑन द हार्ट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। एक्सट्रीमली एबनॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होती है, या इसमें वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो आपने पहले पढ़ी होगी, दिस इज अ रेशियो बिटवीन द जो एयर है विद इन द पैसेजेस एंड द ब्लड फ्लो थ्रू द लंग्स, ठीक है। तो इनमें जो रेशियो है कि कितनी भी, ये स्टैंड्स फॉर द वेंटिलेशन एंड क्यू स्टैंड्स फॉर द ब्लड फ्लो थ्रू द दिस लंग्स, ठीक है। अब इसमें वी ए ओवर क्यू, इसमें अगर तो वेंटिलेशन ज़्यादा है और ब्लड फ्लो कम है तो डिफरेंट कंडीशन होती है, अगर वेंटिलेशन कम है और ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो डिफरेंट कंडीशन होती है, ठीक है। तो एम्फीसीमा में दोनों ही तरह की कंडीशंस हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द डैमेजेस व्हिच हैज बीन देयर इन द एल्वुलर वॉल्स, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर तो ये हो जाए कि जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है वो लो हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि वेंटिलेशन तो कम है और ब्लड फ्लो ज़्यादा है, ठीक है। अगर वेंटिलेशन कम है तो इसका मतलब है एयर विद इन द लंग्स कम है और परफ्यूजन ब्लड फ्लो ज़्यादा है, तो इसका मतलब है अ पोर्शन ऑफ द ब्लड पासिस थ्रू दीज एल्वुलर वॉल्स विदाउट बीइंग ऑक्सीजनेटेड, यानी एक पोर्शन ऑफ द ब्लड ऐसा पास हो जाता है जिसकी ऑक्सीजनेशन होती ही नहीं है, और वो जो पोर्शन ऑफ द ब्लड होता है उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल शंट, ठीक है। यानी वो शंट ब्लड है जो कि चला गया है विदाउट बीइंग ऑक्सीजनेटेड क्योंकि वेंटिलेशन पूरी नहीं थी। और दूसरी कंडीशन कि अगर हाई वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो हो दूसरे किसी एरिया ऑफ द लंग्स में, तो वहाँ क्या होता है कि वेंटिलेशन तो बहुत हो रही है लेकिन डैमेजेस टू द वॉल की वजह से कैपिलरीज भी डैमेज हो गई हैं, तो वहाँ पर जो है ना ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ब्लड फ्लो नहीं है ज़्यादा तो इसका मतलब ये है कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो बढ़ गई है, तो उससे ये क्या होता है कि जो एयर है विद इन द लंग, अब इतना ब्लड नहीं है कि जिसमें सारे डिफ्यूज हो सके जो एयर है प्रेजेंट विद इन द एल्वुलाई, तो जो एल्वुलर वॉल जो है ना विच इज़ नॉट बीइंग डिफ्यूज्ड इन द ब्लड दैट गेट्स वेस्टेड, उतना पोर्शन ऑफ द वेंटिलेशन का वो वेस्ट हो जाता है, और वो जो वेस्ट होता है हम उसको दैट डजंट टेक पार्ट इन द गैसियस एक्सचेंज, उसको हम कह देते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, ठीक है। एम्फीसीमा में दोनों ही कंडीशन होती हैं, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस भी होती है और फिजियोलॉजिकल शंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डैमेज टू द एल्वुलाई, डिपेंडिंग अपॉन द डैमेज टू द कैपिलरी वॉल्स एज वेल, तो वो तो स्ट्रेच हो जाती है साथ, ठीक है। सो द पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है इससे ड्यू टू डिक्रीज नंबर ऑफ कैपिलरीज एंड इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जाहिर है कि जब डैमेजेस हो जाते हैं तो कैपिलरीज जो होती है ना उनका नंबर डिक्रीज कर जाता है, और चूँकि ब्लड फ्लो में वो पूरे पैसेजेस या चैनल्स नहीं मिलते हैं टू फ्लो फ्रॉम देयर, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाती है विद इन द लंग्स which leads to pulmonary hypertension. So this is another outcome of emphysema. ये damages सारे इससे हो सकते हैं।
that is prolonged devastating air hunger due to hypoxia obviously, क्योंकि अगर अगर वेंटिलेट नहीं कर पा रहा है बंदा, या तो उसकी एयर जो है ना वो ट्रैप हो गई, दैट इज नॉट बीइंग यूज, या ये है कि वो इंस्पिरेशन तो हो रही है बट दैट इज नॉट, गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा ड्यू टू द डिक्रीज नंबर ऑफ कैपिलरीज। तो उसकी वजह से इन दोनों सूरतों में होता यह है कि ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी इज रिड्यूस्ड, लीडिंग टू एयर हंगर, ये जिसको हम डिस्पनिया कहते हैं, या हाइपोक्सिया, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, और हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया भी इसलिए हो जाता है क्योंकि कैपिलरीज नहीं है तो गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बाहर नहीं निकल रही, ऑब्स्ट्रक्शन टू द एक्सपायरेशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सपायरेशन भी नहीं हो रही है, तो which leads to hypoxia and hypercapnia as well as a result of hypoventilation due to damaged alveolar walls, ठीक है। So this happens in the emphysema। अब ये देखिए, ये एक पिक्चर है जिसमें फर्स्ट वन है, दिस इज द नॉर्मल पैटर्न। अब नॉर्मल पैटर्न में देखिए ये सारे alveoli हैं, these are all alveoli, very well demarcated and having a very continuous alveolar जो है इसकी वॉल्स हैं, ठीक है। ये देखिए कंटिन्यूस एल्वेओलर वॉल्स है, थिन वॉल्स है, और यहाँ से जो है ना गैसियस एक्सचेंज इनके थ्रू ही होता है, ठीक है। बट इन द अदर कंडीशन आप देखिए एम्फीसीमा में क्या है कि ये जो है सारी एल्वेओलर वॉल्स, और चूंकि ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द एल्वेलाई की वजह से और कुछ इन्फेक्शन की वजह से, तो जो एल्वेओलर वॉल्स हैं दे आर डिस्टॉर्टेड और दे आर डैमेज्ड। ये देखिए कि ब्रेक्स आ गए बीच में इसमें जगह जगह, तो एक बड़े बड़े एल्वेलाई बन के, इसमें क्या है, अब ये देखिए इसमें इसका और इसका कंपैरिजन आप जब करते हैं दोनों का, इसमें देखिए ये कितनी ज़्यादा इसको सरफेस एरिया अवेलेबल है फॉर द गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। बट इसमें जो है ये एरिया रह जाता है फॉर द गैसियस एक्सचेंज की जो है पड़ा हुआ, ठीक है। सो द गैसियस एक्सचेंज का एरिया भी कम हो गया और एयर भी ट्रैप हो गई है बीच में, सो इसमें सर्टन एरिया में जो है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियोज डिस्टर्ब होंगी और वो प्रॉपरली ऑक्सीजनेशन नहीं होती, एयर हंगर हो जाती है, हाइपोक्सिया हो जाता है, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ pneumonia, we'll discuss it later on. Now next slide is that of pneumonia. pneumonia क्या है कि it is an inflammatory condition of lungs in which some or all of the alveoli are filled with fluid and blood, ठीक है। दिस इज मेनली ये एक इन्फेक्शन होता है, आइदर वायरल और बैक्टीरियल, मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो इन्फेक्टेड जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है ऑफ द लंग्स, जिसमें के एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड हो जाती है, और या और एंड द ब्लड सेल्स, जिसमें रेड ब्लड सेल भी आ सकते हैं एंड वाइट blood cell, macrophages, the neutrophils, all they and these alveoli they get filled with the fluid and the blood cells, इसको यानी वो वहाँ पे सारे कंसोलिडेट हो गए, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड द कंसोलिडेशन ऑफ द लंग। निमोनिया पैचेस जो होते हैं उनको हम कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ मोनली द बैक्टीरियल निमोनिया होता है जिसकी स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है जिसको हम न्यूमोकोकाई कहते हैं, ठीक है। अब इसमें सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। इसमें इन्फेक्शन होता है इन द एल्वेलाई ड्यू टू द न्यूमोकोकाई, वो एंटर हो गए, ठीक है। उसके बाद जो एल्वेलाई होते हैं दे गेट इन्फेक्टेड और उनकी मेम्ब्रेन जो होती है ना वो हाईली पोरस होती है, यानी ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, अगर आप इसमें देखें कि जो मेम्ब्रेन जो थी रेगुलर थी इसमें नॉर्मल में, इसमें नॉर्मल में, अब इसमें देखिए कि इसमें ये जो है मेम्ब्रेन आपको बीच में नज़र आ रही हैं, ये बीच में डिस्टॉर्टेड है, देखिए यहाँ पर ये जो है कि अंदर पोरस मेम्ब्रेन्स हो गई, पोर्स बन गए हैं डिफरेंट, ठीक है ना। अब जो पोर्स बन जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि फ्लूइड या जो भी पार्टिकल्स हैं दे कैन मूव इजीली इनसाइड एंड आउटसाइड द एल्वेलाई, ठीक है। सो मेम्ब्रेन्स जो होती है ना वो पोरस हो जाती हैं, फ्लूइड आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज फिल द एल्वेलाई फॉर द कंसोलिडेशन, ठीक है। यानी जो फ्लूइड, जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज जिन्होंने आके फिल कर दिया है एल्वेलाई को, उसको हम उस एल्वेलाई को हम कह देते हैं, उस कंडीशन को कह देते हैं कंसोलिडेशन। एंड दिस गोज ऑन, चूँकि इसके बीच में आप देखिए कि इसमें अगर एक जगह कंसोलिडेशन हुई है, ठीक है, अब अगर बीच में जो है वो इसमें स्पेसिस हैं, ब्रेक्स हैं, तो ये दूसरे पोर्शन में भी तो चली जाती है, ठीक है। So it spreads to the other alveoli as well, but sometimes a lobe of the lung or whole of the lung gets involved in the by the pneumonic patches, ठीक है, स्प्रेड करती है
टू द अदर ग्रुप्स ऑफ द लंग। अब इसमें जो है ना मेन इसका इफेक्ट क्या होता है? मेन इफेक्ट इसका ये होता है कि इसमें रिड्यूस पल्मोनरी वेंटिलेशन होती है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो रही है। जाहिर है जब अंदर फ्लूइड जो है ना वो एक्यूमुलेट हो गया है, ब्लड सेल्स एक्यूमुलेट हो गए हैं और डैमेज मेम्ब्रेन्स हैं जिसकी वजह से कैपिलरीज जो है अवेलेबल नहीं है फॉर द गैसेस एक्सचेंज, तो रिड्यूस पल्मोनरी वेंटिलेशन हो जाती है। दिस इज ड्यू टू रिडक्शन इन द सरफेस एरिया। जाहिर है जितना सरफेस एरिया अवेलेबल होना चाहिए फिर गैसेस एक्सचेंज वो नहीं है। डिक्रीज्ड वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कॉजिंग हाइपोक्सीमिया एंड हाइपरकैप्निया। ठीक है, इसमें डिक्रीज वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होती है क्योंकि वेंटिलेशन कम होती है, परफ्यूजन तकरीबन हो ही रही होती है, सिर्फ उससे एल्वेलर वॉल्स जो होती है ना वो ज़्यादा डैमेज होती है, कैपिलरी डैमेज होता है बट नॉट टू द एक्सटेंट। तो इसमें जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है। एम्फाइसीमा में डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। इसमें डिक्रीज हो जाती है विच लीड्स टू हाइपोक्सीमिया, डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड हाइपरकैप्निया, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, blood passing through aerated lung is 97% saturated with oxygen and through unaerated lungs is 60%. Average saturation of blood with oxygen is 78%. That is far below normal. होता क्या है कि कुछ एरियाज जो कि नॉर्मल है लंग के, जहाँ तक ये जिन्होंने कंसोलिडेशन ने जिस एरिया को इन्वॉल्व नहीं किया वहाँ पे ऑक्सीजन सेचुरेशन 97% तक होती है, लेकिन जो कंसोलिडेटेड एरिया जो होता है वो उसमें जो इसकी सेचुरेशन है वो 60% तक ड्रॉप कर जाती है और नॉर्मल जो है 78 to 80% होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कंसोलिडेटेड एरिया में जो सेचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन है वो डिक्रीज कर गई है टू अ वेरी वेरी फार लो लेवल। फिर आ जाती है एक और कंडीशन जिसको हम कहते हैं एटिलेक्टिसिस। एटिलेक्टिसिस का मतलब ये होता है कोलैप्स ऑफ द लंग ड्यू टू एनी कंडीशन। कोई भी कंडीशन है विच लीड्स टू द कोलैप्स ऑफ द लंग इज कॉल्ड एटिलेक्टिसिस। ठीक है, अब एटिलेक्टिसिस में वो कहता है कि या तो ये है कि इतना टू अ स्मॉलर एरिया, नैरो एरिया ऑफ द लंग को इन्वॉल्व करे, वहाँ पे एक लोकली कोलैप्स हो जाए एरिया, या लंग एज अ होल कोलैप्स कर जाए। सो दोनों ही कंडीशन हो सकती है इन एटिलेक्टिसिस। ठीक है, अब इसमें कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं? एक तो टोटल एयर में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, अंदर एयर जा ही नहीं रही है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, या तो ब्लॉकेज हो जाती है स्मॉलर एल्वेलाई की बाय द म्यूकस, या लार्जर जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें भी म्यूकस प्लग्स जो होते हैं ना बड़े बड़े वो जाके फंस जाते हैं, या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट जाके फंस जाए, या कोई ट्यूमर हो जाए जिसने कि जो है किल कर लिया है ब्रोंकस को फ्रॉम इनसाइड, या कोई ट्यूमर है फ्रॉम आउटसाइड जिसने उस लार्जर ब्रोंकस को जो है ना कंप्रेस कर दिया है, जिसकी वजह से आगे एयर जा ही नहीं रही है। सो एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द टू द एयरवे दैट लीड्स टू द एटिलेक्टिसिस, के अंदर एयर जा ही नहीं रही है। ठीक है, एयर एंड ट्रैप बियॉन्ड द ब्लॉक इज एब्जॉर्ब्ड इन पल्मोनरी कैपिलरी। अब देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक आ गया है, उसके बियॉन्ड जो एयरवे पहले पड़ा हुआ है, एयर कलेक्शन हुई हुई है, वो आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब हो जाती है पल्मोनरी कैपिलरीज में। If the lung tissue is pliable, there is collapse of alveoli. If the lung is fibrotic, the air obstruction from alveoli creates negative pressure, which pulls the fluid from capillaries into the alveoli and fill it with edema fluid. ठीक है, होता क्या है कि जब एयर जो है आप एक जगह ब्लॉक आ गया ब्रोंकस में, उसके बाद जो लंग्स बियॉन्ड दिस लेवल, लंग्स के अंदर जो एयर पहले से मौजूद है वो पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर वो डिफ्यूज़ हो जाती है, वो डिफ्यूज़ हो जाती है। तो अगर तो ये लोकलाइज्ड एरिया में हो और लंग्स जो है ना वो सॉफ्ट हो अभी, तो होता क्या है कि सिर्फ एल्वेलाई जो है ना वो कोलैप्स कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बीच में आगे फाइब्रोटिक एरिया भी कोई पड़ा हुआ है, फाइब्रोसिस हुआ है ड्यू टू एनी रीज़न, तो क्या होता है कि वो तो उसने तो कंट्रैक्ट नहीं करना, तो फिर एक वो जो एयर हंगर का या एयर डिक्रीज एयर प्रेशर जो होता है ना उसकी वजह से एक नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है विद इन द लंग, क्योंकि जो पहले एयर पड़ी हुई है वो सारी एब्जॉर्ब हो गई है, तो उसकी वजह से एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से लंग्स एज अ होल वो कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, अब वो जब वो कोलैप्स करता है तो होता ये है कि जो कैपिलरीज जो होती हैं ना उनकी भी ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं वॉल्स, और दूसरा उनकी परमेबिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से
जो फ्लूइड है फ्रॉम द कैपिलरीज वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है विद इन द एल्वुलाई, ठीक है। और वहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे लंग्स में हो जाता है, और जब पूरे लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं मैसिव कोलैप्स ऑफ द लंग्स, ठीक है। जब ये filling of the alveoli with the edematous fluid due to atelectasis, तो इस कंडीशन को हम कह देते हैं मैसिव कोलैप्स ऑफ द लंग, कि अगर पूरा का पूरा लंग बीच में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। अब मैसिव कोलैप्स ऑफ द लंग के इफेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ नॉर्मल कंडीशन, और इसमें डिजास्टर भी बहुत है, ठीक है। इसमें होता है कि एल्वुलर ऑक्लूजन हो जाती है, एल्वुलाई जो है वो बंद हो जाती है, ठीक है। जब एल्वुलाई बंद हो जाते हैं देयर इज इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो ड्यू टू लंग कोलैप्स इटसेल्फ। एक तो लंग कोलैप्स की वजह से भी जो है ना, जो ब्लड फ्लो है वो उसमें से रिड्यूस हो जाता है, और जब ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है तो चूंकि अगेन वही बात आ जाती है कि जो डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस है या ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस है, और या गैसेस एक्सचेंज है थ्रू दीज एल्वुलर वॉल्स एंड द कैपिलरीज, वो हो नहीं रहा होता, तो हाइपोक्सिया हो जाता है इन द कोलैप्स्ड एल्वुलाई, ठीक है। 5/6 of the pulmonary blood flows through the aerated lung in atelectasis, ठीक है। 5/6 पोर्शन ऑफ द ब्लड फ्लो, जो एरेटेड पोर्शन है लंग्स का वो वहाँ से पास करता है, और 1/6 जो है वो जो है अनएरेटेड लंग्स में से, जहाँ पे एटेलेक्टेसिस हुआ हुआ है, अगर एक पोर्शन इन्वॉल्व है तो उसमें जो है ना फिर होता है कि जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है ना वो थोड़ी सी ही डिस्टर्ब होती है, और इस मॉडरेटली कॉम्प्रोमाइज एंड देयर इज माइल्ड ऑक्सीजन डीसैचुरेशन ऑफ एओर्टिक डक्ट। तो इतनी ज़्यादा जो है ना डीसैचुरेशन नहीं होती, यानी मोस्टली उसकी 70% तक ही रहती है, या उससे थोड़ी ज़्यादा ही होती है। दिस डज नॉट ड्रॉप बिलो 70%, ठीक है, एटिलेक्टिसिस में। एक और कंडीशन होती है जिसमें कोलैप्स ऑफ द लंग होती है, वो दैट इज लैक ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट क्या होता है, आपने पहले पढ़ा होगा। इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म आफ्टर द 28th वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। ये लंग्स में होता है प्रेजेंट, जो कि टाइप 2 एल्वुलर सेल से बनता है, और ये इनका काम क्या होता है, इसमें सरफेस टेंशन मेंटेन करनी है, ठीक है। तो जो सर्टेन कंडीशन होती है जिसमें, और जब बेबी क्राई करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सर्फेक्टेंट, जो एल्वुलाई जो होते हैं ना दे एक्सपैंड, लंग्स एक्सपैंड, ठीक है। और अगर ये ना हो द लंग्स रिमेन कंप्रेस्ड एंड लीडिंग टू अ वेरी सीरियस कंडीशन जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऑफ द इन्फेंट कहते हैं, या हम उसको हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज कहते हैं, ये आपने पहले पढ़ा होगा। सर्फेक्टेंट डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन इन द एल्वुलाई 2 to 10 fold, ठीक है। अगर सर्फेक्टेंट मौजूद होगा, सर्फेक्टेंट का काम ये है कि उसकी सरफेस टेंशन को कम करना है एक टू अ सर्टेन लेवल, ठीक है, ताकि जो है ना वो कोलैप्स ना करें लंग्स, ठीक है। इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम सर्फेक्टेंट secretion is depressed leading to increased surface tension in alveoli causing the collapse of the lungs, ठीक है। ये होता क्या है उसमें, बाय बर्थ जो है ना जेनेटिकली वो देर इज नो सिंथेसिस ऑफ सर्फेक्टेंट बाय द टाइप 2 एल्वुलर सेल्स आफ्टर 28 वीक ऑफ जेस्टेशन। तो वो जब बर्थ होती है तो क्राई के साथ सर्फेक्टेंट इज नॉट देयर, तो सरफेस टेंशन जो ऑफ द लंग्स होती है दैट रिमेन्स देयर, और वो फर्दर इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से लंग्स जो है वो कोलैप्स रहते हैं, लीडिंग टू अ वेरी डिजास्टर्स कंडीशन इन द बेबी, ठीक है। एस्थमा इज अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर, पाकिस्तान में भी होता है, वैसे तो बाहर भी बहुत है, बिकॉज इट इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर। तो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज होती हैं, और जिससे कि विच लीड्स टू severe obstructive lung disorder called asthma, ठीक है। इसमें होता क्या है, देर इज स्पेस्टिक कंट्रैक्शन। अब स्पेस्टिक को वर्ड क्यों है, बिकॉज दिस इज द स्पेस्टिक कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स की वॉल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी स्पेस्टिक कंट्रैक्शन होती है। स्पेस्टिक कंट्रैक्शन का मतलब है कि वो स्पैज्म में चले गए हैं मसल सारे, ठीक है। दे कैन नॉट बी रिलैक्स्ड इमीडिएटली, ठीक है। तो जब वो स्पैज्म में चले जाते हैं दे रिमेन कंस्ट्रिक्टेड, दे रिमेन कंट्रैक्टेड, ठीक है। तो ब्रोंक्यूल्स होती हैं ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, कॉजिंग देयर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इतनी ज़्यादा वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं कि उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, एंड देयर इज एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। कि आपने एस्मा के पेशेंट देखे, दिस इज वेरी कॉमन, किसी ना किसी की फैमिली में कोई ना कोई होता ही है, ठीक है। So this is an allergic disorder leading to the spastic constriction of the smooth muscles of bronchioles and leading to the
obstruction of the bronchiole with extreme difficulty in breathing. It occurs in 3 to 5% of the people. डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में इतनी है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा है, ठीक है। तो वहाँ पे इसकी जो इंसिडेंस है वो वेरी कर सकता है। यंग पीपल में हाइपर सेंसिटिविटी होती है टू द एलर्जीन, मोस्टली पॉलन्स के साथ होती है। आप देखिए ये सीजनल होता है। जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान में होता है इस्लामाबाद में, जो चूँकि पॉलन वहाँ बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पेशेंट्स जो है वो यूजुअली फरवरी मार्च वगैरह में जब पॉलन का सीज़न होता है तो बहुत ज़्यादा एस्थमा के पेशेंट्स वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाज़ लोग तो उन दिनों में दूसरे एरियाज़ को मूव भी कर जाते हैं, ठीक है। So in young people there is hypersensitive to allergens, mostly pollens, और older people में hypersensitivity तो नॉन एलर्जेंस मोस्टली स्मॉग वगैरह में होता है, ठीक है। क्योंकि वो और लेकिन ये एलर्जीज डस्ट वगैरह से भी हो सकती है और दूसरे इरिटेंट मटेरियल्स की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स की वजह से भी हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द हर मरीज में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं विच लीड्स टू द एस्थमेटिक टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ डिजीज, ठीक है। इन पेशेंट्स एलर्जिक टू पॉलन्स डेवलप आईजीई एंटीबॉडीज, ठीक है। उनके अंदर ऑलरेडी आईजीई एंटीबॉडीज पड़ी होती हैं विच आर अटैच टू द मास्ट सेल्स, ठीक है, इन द ब्रोंक्यूलर वॉल्स। ये जेनेटिकली उनमें होती हैं, ठीक है। पॉलन्स जो होते हैं जब वो इनहेल कर लेते हैं दे रिएक्ट विद द मास्ट सेल अटैचमेंट एंड उन एंटीबॉडीज को जाके साथ अटैच हो जाते हैं जो कि मास्ट सेल से ऑलरेडी अटैच्ड हैं। उसके रिजल्ट में इनका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, तो डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं फ्रॉम द मास्ट सेल्स। वो सब्सटेंसेस कौन से रिलीज होते हैं? उनमें होते हैं हिस्टामीन होता है, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलेक्सिस होता है, इसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर होता है एंड ब्रेडिक्लिन होता है। आपको पता है कि सारे जो सब्सटेंसेस हैं इन्होंने क्या करना है? एक तो उन्होंने कैपिलरी परमेबिलिटी उस एरिया की इंक्रीज करनी है। कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज करने की वजह से वो जो फ्लूइड जो एक्यूमुलेशन होती है इन दैट एरिया वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। दूसरे वहाँ पे कीमोटैक्टिक फैक्टर होता है। इनोसिनोफिल्स जो होते हैं ना फ्रॉम द अदर एरियाज दे आल्सो मूव टू दिस एरिया। इयोसिनोफिल्स दे आर आल्सो रिलीज in addition to the parasitic infection they are also released in the allergic conditions, ठीक है। so mostly जो है ना ये एस्मा में एलर्जेंस जो है ना वो इयोसिनोफिल जो है ना वो रिलीज होते हैं और ब्रेडिक्लिन वगैरह। इन सब का काम ये है कि इन्होंने एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को इंक्रीज करना है, ठीक है। अब इन जब ये सारे रिलीज हो रहे होते हैं सब्सटेंसेस तो उनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है? कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है? एक तो फ्लूइड जो है ना वो जो एक्यूमुलेट हो रहा है उससे लोकलाइज्ड एडिमा हो जाता है उस एरिया में कुछ, और थिक म्यूकस सिक्रीशंस निकल रही होती हैं फ्रॉम द एल्वुलर ग्लैंड्स वगैरह एंड ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल स्पैज्म हो जाता है। अब ये सारी कंडीशन जो है ना दिस इज लीडिंग टू अ वेरी सिवियर पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है? फिर दूसरे डिफिकल्ट एक्सपिरेशन होती है ड्यू टू ब्रोंक्यूलर स्पैज्म एंड इंक्रीज्ड एक्सटर्नल प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपिरेशन लीडिंग टू। अब क्या होता है कि एक तो एक्सपिरेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। एक तो अंदर ऑलरेडी जो है ना म्यूकस सिक्रीशंस वगैरह ज़्यादा पड़ी हुई हैं विद इन द वेसल्स और ब्रोंक्यूलर स्पैज्म भी हुआ हुआ है, तो उसकी वजह से और ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर एज वेल, ठीक है। तो होता यह है कि एक तो ग्रेटली रिड्यूस्ड एक्सपिरेटरी रेट हो जाता है इसका, दूसरे रिड्यूस्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम हो जाती है रिजल्टिंग इन डिस्निया और एयर हंगर। ये एक्सपिरेशन प्रॉपर नहीं हो रही और जो है ना एयर हंगर हो रही है क्योंकि वो प्रॉपरली एक्सपायरेट भी नहीं कर पा रहा और फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुई है और गैसेस एक्सचेंज कोई नहीं हो रहा, ठीक है। सो दिस लीड्स टू डिस्निया और एयर हंगर। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम इज इंक्रीज इन एक्यूट अटैक। जाहिर है ज़्यादा जब एयर वो एक्सपायर नहीं कर पा रहा है तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है। जब रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। अब इससे भी पेशेंट की ना बैरल शेप चेस्ट होती है, चेस्ट साइज एकदम परसेंट इंक्रीज कर जाता है क्योंकि दैट इज एज इट इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर जो होता रहता है। तो क्रॉनिक केसेस में तो चेस्ट कैविटी जो है जस्ट टू अकोमोडेट or just to accommodate the more and more residual capacity of the air, तो वो उसका साइज होता है ना वो बढ़ जाता है। सबसे जो टिपिकल बैरल शेप चेस्ट होती है वो एम्फाइसीमा में होती है क्योंकि उसमें एयर एंट्रैपमेंट विद इन द एल्वेलाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्थमा। द नेक्स्ट कंडीशन इज द ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है ना इज़ वेरी कॉमन डिजीज़ इन पाकिस्तान। आमतौर पे हम उसको कहते हैं टीबी। दैट्स वाई हम सबसे पहले जो बच्चे को इंजेक्शन लगाते हैं द फर्स्ट वीक ऑफ इट्स बर्थ
तो उसको हम टीबी के लिए हम उसको वैक्सीनेट करते हैं, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैसिलस, जिसको हम ट्यूबरकुल बैसिलस कहते हैं। ये एक जब अटैक करता है लंग्स को, इट कॉजेज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि जो मैक्रोफेजेस जो होते हैं दे इन्वेड द इन्फेक्टेड टिश्यू। जो एल्वुलर मैक्रोफेजेस पड़े हुए हैं ऑलरेडी इन द लंग्स, दे इन्वेड द इन्फेक्टेड टिश्यू, वहाँ पे आ जाते हैं फ़ौरन से, जैसे ही बेसिलाई आते हैं। तो वहाँ पे एक ट्यूबरकुल फॉर्मेशन हो जाती है ड्यू टू द वॉलिंग ऑफ लीजन बाय फाइब्रस टिश्यू। वॉलिंग क्या ऑफ का मतलब ये है कि वो जो एरिया है जहाँ पे आके इसने अटैक किया और जहाँ पे आके मैक्रोफेजेस जो हैं वो एक्यूमुलेट हुए, वो उसके गिर्द एक ऑटोमेटिकली एक वॉल बन जाती है ऑफ द फाइब्रस सेल्स, फाइब्रस टिश्यू, जो कि बाद में फाइब्रस टिश्यू बना देता है। अब उस एरिया के चारों तरफ जो है ना फाइब्रस टिश्यू बन जाता है, और उसके अंदर ही जो है ना ट्यूबरकुल बैसिलाई पड़े होते हैं और मैक्रोफेजेस जिन्होंने वहाँ इन्वेड किया है, तो उनके अंदर सारी जंग हो रही है, और जो है ना बाकी एरिया जो है वो उसको बचाने के लिए वॉलिंग ऑफ होती है, ठीक है। हैंस प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ द ट्यूबरकुल बैसिलाई टू द अदर टिश्यूज, ठीक है। इस तरह से इसका फ़ायदा ये होता है कि जो ट्यूबरकुल बैसिलस जो होते हैं ना वो दूसरे एरियाज ऑफ द लंग्स में वो स्प्रेड नहीं कर सकते, जैसे कि दूसरी डिजीज में हमने देखा है कि एम्फाइसीमा में या निमोनिया में वो दूसरी एरियाज में स्प्रेड कर देते हैं और पूरी पूरी लूप्स को इन्वॉल्व कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक एरिया होता है। लेकिन अगर ये है कि वो इस ये बॉडी का अपना एक स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें वॉलिंग ऑफ होती है, और जो इसके रिजल्ट में जो एक सॉर्ट ऑफ मैस बन जाता है उसको हम कहते हैं ट्यूबरकल, ठीक है। इसकी वजह से ही चूंकि ट्यूबरकल बन जाता है, इसकी वजह से इस डिजीज का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक। अब होता क्या है कि अगर तो ये बॉलिंग ऑफ हो गई है और जो है ना बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म ने काम कर लिया, अब लेकिन उसके बाद इसको ट्रीटमेंट भी तो चाहिए दैट कैन किल द बैक्टीरिया। लेकिन इफ द पेशेंट डजंट गेट द ट्रीटमेंट, अगर अनफॉर्चुनेटली उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो वॉलिंग ऑफ जो है ना वो फाइब्रोटिक जो हमने बॉडी ने बनाया है, एक वॉल बनाई हुई है, दैट गेट्स डिसरप्टेड, ठीक है, तो डैमेज हो जाती है और वॉलिंग ऑफ फेल हो जाता है, एंड बेसिलस स्प्रेड थ्रूआउट द लंग्स कॉजिंग एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एक्सेस कैविटीज, ठीक है। कि अगर ये वॉलिंग ऑफ मैकेनिज्म फेल हो जाए तो ट्यूबरकुल बेसिलाई जो होते हैं ना वो स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं टू द होल ऑफ द लंग्स, और वहाँ पर जाके वो एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन करते हैं ऑफ द टिश्यूज और एब्सिसेस बन जाती है। एब्सिसेस क्या होती हैं कि जो एरिया ऑफ एक्यूमुलेटेड पस जहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती है इन द डिफरेंट एरियाज, उनको हम एब्सिस कहते हैं। तो पूरे लंग्स के अंदर जो होता है वो पस और ये एब्सिस एरियाज बन जाते हैं, वो कैविटीज बन जाती हैं उसमें। अब ये कैविटीज जो बनी हुई हैं इन द लेट स्टेजेस, टीबी हैज फाइब्रोसिस थ्रू आउट द लंग्स एंड रिड्यूस लंग टिश्यू, यूँ के जो ये है एब्सिस हैं, ये बाद में हर जो इन्फेक्टेड एरिया है उसमें बाद में उसमें फाइब्रस टिश्यू या सेल्स जो होते हैं ना वो इन्वेड कर जाते हैं, ठीक है। फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है प्रोसेस विद इन दीज एरियाज, तो फाइब्रस मटेरियल या फाइब्रोटिक टिश्यू बन जाता है उस एरिया में। तो जब एब्सिस कैविटीज बनती हैं बीच में, तो वो भी दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज फाइब्रोटिक एरियाज थ्रूआउट द लंग्स और रिड्यूस लंग टिश्यू। और जब चूँकि फाइब्रोटिक एरिया डिफरेंट एरियाज में बन जाते हैं, तो जो नॉर्मल लंग टिश्यू है वो कम हो जाता है। तो जब लंग टिश्यू नॉर्मल कम होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि इंक्रीज वर्कलोड ऑन द रेस्पिरेटरी मसल्स विद रिड्यूस्ड वाइटल कैपेसिटी एंड ब्रीथिंग कैपेसिटी। ऑब्वियसली जब पूरे का पूरा लंग में गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ी है कि पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिसमें कि उसके रेस्पिरेटरी मसल्स भी आ जाते हैं, तो ताकि जो वाइटल कैपेसिटी है, रिड्यूस वाइटल कैपेसिटी या रिड्यूस ब्रीदिंग कैपेसिटी है, उसको कम्बैट करने के लिए या उसकी कंपनसेशन के लिए ये इंक्रीज वर्कलोड आ जाता है रेस्पिरेटरी मसल्स पे। फिर रिड्यूस पल्मोनरी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी हो जाती है। एक तो जो है ना वैसे डिस्ट्रक्शन भी हो जाती है कितने एल्वेलाई के इन्फेक्शन की वजह से, और दूसरे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है ना वो भी थिक हो जाती है। जब थिक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है तो गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होती है, which leads to the impaired pulmonary diffusion,
तो उसकी वजह से एक तो, और दूसरे इसमें सरफेस एरिया भी रिड्यूस्ड हो जाता है क्योंकि डैमेज्ड वॉल्स होती हैं। तो इन दोनों की वजह से पल्मोनरी डिफ्यूजन कैपेसिटी भी कम हो जाती है। और इसमें वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो भी इसमें भी एबनॉर्मल होती है, ये आइदर इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस में एज इन एम्फीसिमा दोनों तरह के डैमेजेस होते हैं और वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो दोनों तरह से डिस्टर्ब हो सकती है, आइदर इट कैन इंक्रीज और इट कैन डिक्रीज टू अ सर्टेन लेवल। ठीक है, so this was all about the chronic obstructive pulmonary diseases. uh, this is all for today's lecture. If you have any question, you can put it on the chat and I'll answer it. ठीक है, अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो फिर मैं आपको भी, वी हैव टाइम, तो मैं ये रिपीट कर सकती हूँ आपके लिए। ठीक है, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे इज, एक तो डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे कि हम डिफरेंट रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसीज को मेजर कर सकते हैं और डिटर्मिन कर सकते हैं कि कौन कौन सी डिजीजेस हैं या पर्सन जो है ना आइदर नॉर्मल और ही और शी सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज। फिर मैक्सिमम एक्सपिरेटरी फ्लो जो है ना वो कैसे कम होता है विद द इंक्रीज एक्सपिरेटरी एफर्ट। फिर डिफरेंट जो ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस में जो मैक्सिमम एक्सपिरेटरी फ्लो है वो किस तरह से चेंज होता है, वो भी आपने स्टडी किया विद दिस ग्राफ। और उसके अलावा जो है ना इसकी मैक्सिमम एक्सपिरेटरी जो FEV1 FEVC रेशो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आपको शॉर्ट नोट्स भी आते हैं और ये आपको वाइवा में भी क्वेश्चन आते हैं और इसके अलावा आपके MCQs में भी क्वेश्चन आते हैं FEV1 FEVC रेशो से मुतालिक कि नॉर्मल कितनी होती है या एस्थमा में कितनी होती है या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, या FEV1 होता क्या है या FEVC होता क्या है। ठीक है, सो ये आपको इस रेफरेंस से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये ग्राफ है, इसमें समटाइम्स आ जाता है ग्राफ दे दिया जाता है और उसमें फिर कहते हैं कि डिटर्मिन कि ये क्या है, क्या आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फिर आ जाता है कि डिफरेंट आप क्लासीफाई करें डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, उसमें आपको बता देना रिस्ट्रिक्टिव होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव होते हैं। रिस्ट्रिक्टिव कौन कौन से होते हैं और ऑब्स्ट्रक्टिव कौन कौन से होते हैं, दिस इज दैट द लिस्ट ऑफ दी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। फिर एम्फाइसीमा क्रोनिक स्मोकिंग की वजह से होता है। एक्सेसिव एयर इन द लंग, डैमेज्ड एल्वेओलर वॉल्स होती है, इसकी स्पेसिफिक पैटर्न होता है। एंट्रैपमेंट ऑफ द एयर होती है, इसके अंदर रिड्यूस्ड पल्मोनरी कैपेसिटी होती है। ठीक है, और एयर हंगर होती है और इसमें जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है इंक्रीज भी कर सकती है डिक्रीज भी कर सकती है, दोनों कंडीशन इसमें हो सकती हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन इसमें हो सकती है, हाइपोक्सिया हाइपरकैप्निया वगैरह सारा हो जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं नॉर्मल की, निमोनिया की और एम्फोसीमा में क्या दिक्कत बनती है हमारी स्लाइड्स की ऑफ द लंग टिश्यू। फिर निमोनिया ये एक इन्फेक्शन कंडीशन है, निमोकॉकाई की वजह से होती है और इसमें कंसोलिडेशन हो जाती है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, आर्टरीज इन द रैंडमली पीसेस होते हैं इन सर्टेन एरियाज। और ये है कि ये स्प्रेड भी कर सकते हैं, लोब को भी पूरे इन्वॉल्व कर सकते हैं, पूरे लंग्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें सेचुरेशन जो है ना ऑक्सीजन सेचुरेशन वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, एटेलेक्टिसिस जो होता है ना उसमें कोलैप्स ऑफ द लंग होता है ड्यू टू एनी कंडीशन, ऑब्स्ट्रक्शन टू द स्मॉलर और द लार्जर एल्वियोलाई ब्रोंकाई की वजह से हो सकता है और पूरा लंग जब कोलैप्स करता है उसको हम मैसिव कोलैप्स करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें एल्वियोलर ऑक्लूजन हो सकती है, रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो हो सकता है और कोलैप्स हो सकता है। फिर सरफेक्टेंट का काम आ जाता है, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज। उसमें क्या होता है, एस्थमा। एस्थमा इज एलर्जिक कंडीशन जिसमें कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, जो आईजीई एंटीबॉडीज पड़ी होती हैं मास सेल से, जो कि पॉलन्स के आने से उसके साथ अटैच होती हैं और वो डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जो कि एनाफिलिक्सिस के होते हैं। और उनके रिजल्टेंट इफेक्ट ये होता है कि उसमें ग्रेटली रिड्यूस्ड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो जाती है, रिड्यूस्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम हो जाता है, डिस्निया हंगर हो जाता है, चेस्ट कैविटी क्रोनिक केसेस में इलाज होती है। ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुल बैसिलस की वजह से होती है, वॉलिंग ऑफ मैकेनिज्म से वॉलिंग ऑफ होकर ट्यूबरकुल बन जाते हैं, लेकिन अगर ये फेल हो जाए तो स्प्रेड हो जाता है सारा डिफरेंट एरियाज ऑफ एब्सेस कैविटीज बन जाती हैं जो कि लेटर ऑन फाइब्रोसिस हो जाता है और उसकी वजह से वर्कलोड बढ़ जाता है रेस्पिरेटरी मसल्स पे, रिड्यूस पल्मोनरी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होती है ड्यू टू थिक मेम्ब्रेन और रिड्यूस सरफेस एरिया होता है और इसके अलावा एब्नॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होती है। ठीक है, so this was all about today's lecture and thank you so much. If you don't have any question, I'll finish it off over here. So I'll see you day after tomorrow for the rest of the lecture. ठीक है, rest of the topic we'll discuss it there and thank you so much for listening.
and Allah Hafiz, take care.